Hi, good morning, everyone. So we are starting with the new chapter. In the previous session, we have done principles of insurance. Now we'll do reinsurance and co-insurance. So the topics that we would be covering in this class is understanding on reinsurance, purpose of reinsurance, prerequisites of reinsurance contract, methods of reinsurance, hybrid insurance, and co-insurance. So these are the topics that we have to cover in this class, and this is a part of unit number 6. Unit number 5. 4. Unit number 4. You just have 5 units. So it's a part of unit number 4. So the topics that we have covered in the previous sessions for insurance are mix and match. Few of the topics were from unit number 5 and few were from unit number 4. So it's a mix and match for insurance that we have just covered, and we will be covering in the next class also. So what is reinsurance and co-insurance? So let's start with reinsurance. So, in the words of D.S. Hansel, the term reinsurance means insuring again by the insurer of a risk already insured. Reinsurance is an insurance of insured risk where the insurer retains a part and cedes the balance of a risk to the insurer. सिंपल मतलब कि जब हम किसी एक इंश्योरेंस का हम दोबारा से एक इंश्योरेंस हमारे पास है, हमने उसको दोबारा से इंश्योर कराया है, दोबारा से इंश्योरेंस करा लिया है. So the definition says that reinsurance is an arrangement by which the primary insurer that initially writes the insurance transfers to another insurer called the reinsurer part or all of the potential losses associated with such insurance. So इसमें क्या होगा, हमने एक इंश्योरेंस ऑलरेडी ले रखा था, सो हमने उसके अलावा दूसरा इंश्योरेंस फिर लिया. सो उसमें क्या होगा कि सामने वाले ने, जो फर्स्ट इंश्योरर था, उसने सारा रिस्क पार्ट या फिर पोटेंशियल लॉस नए वाले इंश्योरर को ट्रांसफर कर दिया. सो दैट इज री इंश्योरेंस. एग्जाम्पल है कि an insurance company says X gets an accidental insurance of rupees 20 million. Company does not want to lose his contract as it would be financially profitable. On the other hand, the company has the capacity to pay 5 million in the case of a loss, and it suspects a high amount of liability to pay at the time of the occurrence of a loss beyond its capacity. So the problem of the insurer can be solved by transferring remaining amount of risk to the another insurer, say Y, through the process of insurer. टू स्टडी री इंश्योरेंस इन डिटेल विल डू, अभी हम आगे कर रहे हैं. सो बेसिकली क्या हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 20 मिलियन का एक कंपनी ने कराया उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने उसी कंपनी ने आगे एक और जो रिमेनिंग पोर्शन था हमारा पार्ट ऑफ लॉस था, वो हमने आगे फिर से किसी और के थ्रू हमने एक्स दूसरी वाई कंपनी से हमने रिमेनिंग जो रिस्क था हमने उसको ट्रांसफर करके हमने उससे इंश्योरेंस करा लिया. इसका मतलब हमारे पास अब 2 लोगों के इंश्योरेंस है. इन शॉर्ट, गिव मी अ मिनट प्लीज. अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं. सीडिंग ऑफिसर refers to the original or the primary insurer, जो स्टार्टिंग का जिससे हमने इंश्योरेंस कराया है. Cession is the amount ceded by the insurer to the reinsurer, that is transferring the amount to the reinsurer by the insurer. Like in the above illustration, 15 million would be the cession amount. Cession amount कौन सा हो जाएगा, ये वाला.
इन दोनों का डिफरेंस. So ceded by the insurer to the reinsurer, that is transferring the amount to the reinsurer by the insurer. Cession is the means the unit of insurance passed to a reinsurer by the insurer which issued a policy to the original insured, and accordingly a cession may be the whole or a portion of single risk defined policies, defined divisions of business as agreed in the reinsurance contract. नेक्स्ट हमारे पास है रिटेंशन. रिटेंशन क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ रिस्क रिटेन्ड बाय द ओरिजिनल इंश्योरर. ओरिजिनल इंश्योरर के पास जो हमारा पास इनिशियली अमाउंट था, दैट वुड बी रिटेंशन. जो था द मैक्सिमम नेट लॉस that can be sustained on a risk of a ceding officer. मीन्स जब हमने सेकेंड इंश्योरेंस लिया, सो उस टाइम पे जितना इंश्योरेंस का अमाउंट हमने अपने पास रखा हुआ था, रिटेन किया हुआ था, दैट इज रिटेंशन मनी, रिटेंशन अमाउंट. नेक्स्ट वी हैव रेट्रोसेशन. Is a second reinsurance, that is whether the reinsurer decides to insure against the part of his portion of risk. जो सेकेंड वाला reinsurance होगा, that is retrocession. लाइन क्या होगा? It is a term that is synonymous with the retention. Synonymous नाम word क्या हो गया? Retention का line. So technically it refers to the capacity of the reinsurer under a treaty to retain risk. For example, if there are 50 line treaty, it indicates a treaty whose capacity is 10 times the amount of the insurer retention bears by the reinsurance. सो अगर हमें सबसे पहले बोला गया है कि लाइन का मतलब क्या है, रेट्रोसेशन का, रिटेंशन का हमारा सिनोनिम नेम है. रिटेंशन क्या था? जो ओरिजिनल अमाउंट हमारा री इंश्योरेंस वाले ने उसने रखा हुआ था. सो 5 लाइन ट्रीटी का मतलब क्या है कि ट्रीटीज हुज कैपेसिटी इज 10 टाइम्स, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस विद 2, 10 times the amount of the insurer's retention bear by the reinsurer. These are just the terminology. इसमें इतना ज़्यादा deep नहीं है. I know this is quite confusing, but just let it be like this. हम की basic, हम उसको basic terminology पढ़ रहे हैं कि terminology है क्या. Adverse selection क्या होता है? Refers to the conscious and a deliberate submission by the reinsured company to the reinsurer of those segment of risk coverage that appears less attractive for the retention by the reinsured. So adverse selection क्या हो जाएगा? Conscious और deliberate submission. किस चीज का? किसने किया है? By the reinsured company to the reinsurer of those segment of risk coverage that appears less attractive for retention by the reinsured. So हमने जो सेकेंड वाली कंपनी को सबमिट किया रिस्क, दैट इज एडवर्स सिलेक्शन, कि हमने डेलिबरेटली अपने रिस्क को कम करने के लिए हमने वो काम किया. नेक्स्ट इज प्राइमरी इज अप्लाइड टू द नॉर्म्स इंश्योर्ड, इंश्योरर, पॉलिसी एंड इंश्योरेंस. सो री इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्राइमरी इंश्योरर मीन सीडिंग कंपनी. प्राइमरी इंश्योरर क्या होगा? सीडिंग कंपनी. और री इंश्योरेंस क्या होगा? सेकेंड कंपनी. द फॉर्मर कंपनी ट्रांसफर इट्स रिस्क बाय द वे ऑफ अग्रीमेंट टू द री इंश्योरर. सेकेंड कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया रिस्क द फॉर्मर कंपनी, स्टार्टिंग जो फर्स्ट कंपनी है उसने रिस्क ट्रांसफर कर दिया किसको? बाय द वे ऑफ अग्रीमेंट टू द री इंश्योरर. द री इंश्योरर अग्रीज टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी इंश्योरर एज स्पेसिफाइड इन द
reinsurance contract. It is to emphasize here that there is no contract emerges between insured and reinsurer. सो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये हमारी कि क्या किसके टर्म्स से हमने क्या यूज किया है. सो जस्ट लेट इट बी लाइक दिस. इफ इन केस देर आर सर्टेन न्यूमेरिकल्स, आई टेल यू प्रॉक्सिमिटी वाला. I'll tell you, Noor. I'll tell you. I'll just complete this topic and then just let you know what was the proximity cause principle. So first we are continuing with this only. अब हमारा क्या है पर्पस, क्या है इंश्योरेंस कराने का. सो इंश्योरेंस कराने की कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास. हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, टू लाइबिलिटी, टू लिमिट द लाइबिलिटी ऑन द स्पेसिफिक रिस्क. किसी चीज़ पे रिस्क है उसकी लिमिट करना अपनी लाइबिलिटी को, बिकॉज हमने एक से ज़्यादा इंश्योरेंस इसी वजह से करा लिया जिससे कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाए. टू स्टेबलाइज प्रॉफिट एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉसेस इन द नेचर ऑफ कैश फ्लो. सो प्रोटेक्शन करना है हमें, लिमिट करना है, स्टेबलाइज करना है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटी की. सो कैपेसिटी से क्या मतलब है? 1 second, देयर इज अ डाउट फ्रॉम वन स्टूडेंट. गिव मी अ मिनट प्लीज. सो कैपेसिटी का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू प्रोवाइड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस हर एक कंपनी की एबिलिटी होनी चाहिए तभी वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. सो कैपेसिटी, सबसे पहले हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होती है. सो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, डेफिनेटली विल अर्न मोर प्रॉफिट. सो थ्रू री इंश्योरेंस कंपनी ऑब्टेन एडिशनल कैपेसिटी and are able to write more coverage than it would have if they had to retail all of the risk themselves. All insurance, even giants, one have limited resources and must set maximums on the amounts of the coverage that they would retain. The reinsurance company enhance the capacity of the ceding company in the two ways. First, these share risk of the ceding company, and second, the underwriting of the administrative expenses incurred by the expenses company to hold and maintain accounts of the records of the insurer. So simple है, nothing it is saying कि हमारी जो maximum capacity है हम उसको increase कर सकते हैं, हमारे resources को हम बचा सकते हैं, limit कर सकते हैं, risk को बचा सकते हैं. So that means we are by reinsurance we are just increasing the capacity जो कि हम नॉर्मली नहीं कर सकते. नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटिंग द लाइबिलिटी. लिमिटिंग द लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? री इंश्योरेंस ऑल्सो फॉलोज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस दैट आर शेयरिंग ऑफ रिस्क. The mechanism of sharing or distribution of risk among the large number of insurer decreases the liability of a single insurer. In accounting terms, lesser liability towards the exposed risk undertaking by the company by the virtue of transferring to reinsurance company declined its net liability up to the extent of the risk retained by it towards the insured. अगर अब आप देखिए कि हमने दो कंपनी कर ली है अपनी, एक इंश्योरेंस के लिए एक नुकसान के लिए. सो हम लिमिट कर रहे हैं लाइबिलिटी को फर्स्ट वाली कंपनी को, या फिर फर्स्ट वाली कंपनी को कैसे लिमिट हो रही है उसकी लाइबिलिटी? बिकॉज अगर वो सिंगल इंश्योरर होता तो अगर उसके पास सिंगल इंश्योरेंस होता तो उसको ही सारा नुकसान उठाना पड़ता. अब क्या है, अब एक और कंपनी आ गई है उसी सेम रिस्क के लिए, उसी सेम पर्सन के लिए. सो डेफिनेटली वो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी
लिमिट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टेबलाइज प्रॉफिट। Reinsurance is used to stabilize profit. An insurer may wish to avoid large fluctuations in the annual financial results. Loss experience may fluctuate vividly because of social and economic condition, natural disasters, and the chance of occurrence of losses. The frequency of losses makes the expected profit determination flexible and unpredictable. Such inconsistent trends may make insurance business risky rather unprofitable. Profits are necessary to attract and retain the capital. When the ceding insurer purchases reinsurance, its losses are limited to retention. अब आप देखिए, आप जैसे कि आप सेकेंड इंश्योरेंस ले लेते हैं, आप फर्स्ट इंश्योरेंस की जो कंपनी है उसकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो, सो डेफिनेटली अगर आप उसकी लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। कैटास्ट्रोफिक लॉसेस क्या होते हैं? जो एकदम से लॉसेस आते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, दैट आर कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। So, catastrophic losses are the large loss to the community resulting from natural disasters as earthquakes, hurricanes, planes crashes, industrial explosions, terrorist attacks. So, reinsurance also provide considerable financial protection to the ceding insurer against a catastrophic loss. So the reinsurance pay part on all of the losses that exceed the ceding company retention amount. So अब कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस अगर कोई हो जाते हैं, इमीडिएट लॉसेस हो जाते हैं, सो डेफिनेटली कंपनीज उस केस में एट टाइम सारा अमाउंट आपको पे नहीं करती है। सो रिटेंशन जो अमाउंट होगा री इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं, सो उस केस में क्या होगा कि कंपनीज आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी, जिसमें कि जो सेकेंड वाली कंपनी है वो आपको लॉसेस से बचाएगी, बिकॉज डेफिनेटली आपके पास एक ही चीज़ के दो इंश्योरेंस है। Next, we have underwriting and professional assistance. Another purpose for purchasing of insurance involves the services provided by the reinsurer. In the general, reinsurers have a good expertise in underwriting different classes of insurance. एक्सपर्ट नॉलेज, अब डेफिनेटली अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहे हैं, सो वो एक एक्सपर्टीज के साथ सारी चीज़ें करते हैं, उनकी नॉलेज बहुत वाइड होती है, जो कि जिससे कि ऑब्वियसली अगर आप देखिए अगर वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दे नीड टू यूज़ देयर माइंड प्रॉपरली कि कोई चीट ना करे कंपनीज को। सो दे हैव टू यूज़ द फाइनेंशियल मॉडल्स एंड टेक्निकल, जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम मेथड से अमाउंट्स निकाल सकते हैं। सो दे हैव अ लास्ट एक्सपर्टीज इन ऑल दी इन देयर जो पूरा इनका इंश्योरेंस का बिजनेस है। Give me a minute, please. नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस। एनी डाउट्स टू एनीवन टिल हियर प्लीज? आई नो कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप नॉर्मली देखिए, हम एक ही इंश्योरेंस को हमने दो कंपनी से करवाया है। इससे क्या होगा, नुकसान हमारा जो है या फिर कंपनी है वो नुकसान उनका बढ़ जाएगा। सो री इंश्योरेंस में क्या होगा यार, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैंने XYZ कंपनी से एक इंश्योरेंस करवाया,
ठीक है, XYZ कंपनी से इंश्योरेंस करवाया 20 लाख रुपीस का, ठीक है, बट मुझे लगता है कि आई एम एक्सप्लेनिंग द इंश्योरेंस, प्लीज वेट। बट आई थिंक सो मुझे क्या करना है, मेरे पास, मैं सोचती हूँ अगर मैंने फायर इंश्योरेंस लिया 20 लाख रुपीस का, बट इफ आई थिंक कि नहीं, 20 लाख का इंश्योरेंस बहुत नहीं है, मुझे 20 लाख का और इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। 20 लाख का इंश्योरेंस मैं एक और सेकंड कंपनी से ले लेती हूँ फॉर द सेम थिंग। दिस मीन्स री इंश्योरेंस में एक ही इंश्योरर को आगे एक और इंश्योरेंस करा रही है। फर्स्ट वाली कंपनी क्या करेगी मेरी इंश्योरेंस की, वो सेकंड कंपनी के पास जाएगी कि तेरे पास भी अगर सेम चीज का इंश्योरेंस है, अब हम लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अगर नुकसान 10 लाख का होता है डेफिनेटली हम 10-10 लाख दोनों से ना लेके 5-5 लाख लेंगे। और अगर 10 लाख होता और हमारे पास एक ही कंपनी होती, हम सारा नुकसान किससे लेते, सारा एक्सपेंस कौन बेयर करता, कंपनी ए बेयर करती। इससे क्या हो रहा है, हमारी लाइबिलिटी जो कंपनीज की अगर हम साइड से देखें, लाइबिलिटी कम हो गई है कंपनी की एक तरीके से, और उसने लॉस को शेयर कर लिया सेकंड वाली कंपनी से। फर्स्ट कंपनी सीडिंग कंपनी होती है जो उसमें बोला गया है। पैसे ज्यादा जा रहे हैं बट आपका रिस्क भी ज्यादा कवर हो रहा है ना। मुस्कान, प्लीज टेल मी योर डाउट। PDF is already there on Google Classroom. Okay. पैसे डेफिनेटली ज्यादा जाएंगे बट आपका रिस्क भी ज्यादा कवर हो रहा है ना। आपका 40 लाख का नुकसान होता है तो आप 20-20 लाख दोनों से ले सकते हैं। फाइन, विल कंटिन्यू विद द मेथड्स। इसमें देखो यही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया है। कंपनी एक्स ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया 20 लाख का। So the company does not want to lose this contract as it would be financially profitable. On the other hand, the company has a capacity to pay 5 lakhs, 5 million in the case of a loss, and it suspects a higher amount of liability to pay at the time of the occurrence of loss beyond its capacity. So the problem of the insurer can be solved by transferring the remaining amount of risk to the another insurer, say Y, through a process of insurer. हम दोबारा से इंश्योरेंस करा रहे हैं। एक इसमें एक अदर वर्ड्स में हम ये भी बता सकते हैं, अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने 20 लाख का, मैंने इंश्योरेंस कंपनी, मैंने आपको बताया 20 लाख का इंश्योरेंस करवा दिया है, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने 20 लाख का इंश्योरेंस तो कर दिया बट वो ये सोच रही है इंटरनली कि अगर नुकसान हो जाता है तो मैं 20 लाख दे नहीं सकती, मैं सिर्फ 10 लाख रुपए ही पे कर पाऊंगी कम अगर सामने पार्टी का नुकसान हो जाता है। तो वो क्या करती है, वो उसी सेम चीज का एक और कंपनी को हायर करके उसको आगे फर्दर इंश्योरेंस कर देती है, फर्दर उस पर अपना लॉस ट्रांसफर कर देती है कि इन केस अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े सारे पैसे उसको भी ना देने पड़े। री इंश्योरेंस का एक other way around, if you understand, it would be this part also. So it is an arrangement by which the primary insurer that initially writes the insurance transfers to another insurer called the reinsurer part or the potential losses associated with such insurance. हम एक ही इंश्योरेंस को उसमें आगे उसने
सो दिस इन दिस री इंश्योरेंस बेसिकली सी जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें हम इन्वॉल्व है, सेकेंड एग्जाम्पल में कंपनीज इन्वॉल्व है। सो मेजरली अगर हम री इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, सो री इंश्योरेंस में मोस्टली इट वुड बी कंपनीज एंड कंपनी C2C टाइप्स होगा, जिसमें कि कंपनी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। पहली कंपनी सोचती है कि मैं पूरा नुकसान नहीं भर पाऊंगी, अगर नुकसान हो जाता है किसी उसके इंश्योरेंस का, सो फिर उसमें क्या करेगी, वो दूसरी कंपनी को हायर करेगी और उस पर थोड़ा सा लॉस ट्रांसफर कर देगी। इज इट क्लियर नाउ? इज दिस मेकिंग यू सम सेंस? आपको समझ आ रहा है? इज इट फाइन नाउ कि आप ने एक और दूसरा तरीका इसको समझने का, आपने हम अगर C2C कंपनी टू कंपनी भी होता है कि आपने एक कंपनी से इंश्योरेंस कराया, उस इंश्योरेंस कंपनी को लगा कि आप वो इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा नुकसान नहीं बेयर कर पाएगी, सो उसने एक और कंपनी को हायर किया, आप ही के नुकसान के लिए एक और कंपनी को हायर किया और उस पर थोड़ी सी लायबिलिटी डाल दी, जिससे कि अगर कोई नुकसान होता है, सो उस केस में जितने की वो लायबिलिटी उस पर डालता है, सो उतने का नुकसान वो उससे ले सके। फाइन, सो जस्ट कीप दिस एग्जाम्पल कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। प्री रेक्विजिट्स आपके सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में मेथड्स हैं। सो हमारी एग्जाम्पल अब क्लियर है कि हमने एक से इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कंपनी ने आगे दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया कि जिससे कि वो अपना नुकसान कम कर पाए। दिस इज बेसिकली री इंश्योरेंस, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा रही है जिससे कि आपका नुकसान कम हो पाए। सो लाइबिलिटी उसकी कम हो जाएगी डेफिनेटली। लाइबिलिटीज हमने अभी बात करी थी, तो लाइबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ये जो लॉसेस है ये कम हो जाएंगे। अंडर राइटिंग जो इसकी एक्सपेंसेस है, प्रोफेशनल असिस्टेंस है। अब हम अगर दो कंपनीज एक ही काम कर रही है, सो डेफिनेटली उनकी इंटरनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज इतनी अच्छी होगी कि एक ही अगर लॉस को वो मिटिगेट करें, सो वो चीज प्रॉपर हो पाए। नेक्स्ट अब हमारे पास है मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस। क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास की जिससे कि हम री इंश्योरेंस करा सकते हैं। सो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, दिस इज द सिंपलेस्ट oldest but informal method of reinsurance. It is vividly used method and applicable for the risk for those not covered under treaty method. So faculty का मतलब क्या है? Special permission. So facultative reinsurance में क्या requires a permission of special permission of reinsurer. ये देखिए आप, री इंश्योरेंस हुआ, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस है, एक ट्रीटी री इंश्योरेंस है, प्रो राटा और प्रोपोर्शनल बेसिस पे एक्सेस ऑफ लॉस, ये दो तरीके हैं। इसमें आगे और एक पूरा वे है, हम पढ़ते हैं इसको। सो फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? री इंश्योरेंस ऑफ अ पार्ट और अ सिंगल पॉलिसी in which the cession is negotiated separately and the reinsurer and the insurer, the reinsurer and the insurer have the option of accepting or declining each individual submission. So facultative reinsurance is optional selective case method that is used when the ceding company receives an application
for insurance that exceeds its retention limit. The primary insurer makes specific inquiry each time of the reinsurer for the individual risk. There is no compulsion for the ceding insurers that it should purchase reinsurance on a policy that it does not wish to insure. Similarly, there is no obligation on a part of a reinsurer to reinsure for a proposal submitted to the primary insurer. So facultative में nothing, it's just saying कि part और जो हमारी single policy है हम negotiate करके सेपरेटली हम दोनों से री से बात करके तब उसके पास भी ऑप्शन है, री इंश्योरर और इंश्योरर के पास दोनों के पास ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट करे इंडिविजुअल सबमिशंस या फिर एक्सेप्ट ना करे, उसकी मर्जी है। सो उसमें दो बेसिस हैं हमारे पास, प्रोराटा बेसिस है जिसमें प्रोपोर्शनल होगा कि हम प्रोराटा, आपने पढ़ा होगा प्रोराटा क्या होता है, हमने शेयर्स में किया था कि अगर हमारे पास 3 शेयर्स है और हमें 4 लोगों ने अगर अप्लाई किया है सो हमें किस तरीके से उसको डिवाइड करना है। सो प्रोराटा बेसिस पे वो हमारा री इंश्योरेंस होता है। और सेकंड होता है एक्सेस ऑफ लॉस, मीन्स नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस, जो प्रोराटा के बेसिस पे नहीं होगा, प्रोपोर्शनेटली नहीं होगा। सो प्रोराटा बेसिस में क्या होगा, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रीइंश्योरेंस वैल्यू इज कंसिडर्ड फॉर रीइंश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सच परसेंटेज। द प्रीमियम एंड द लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सीडिंग कंपनी एंड द रीइंश्योरर। सो जो प्रीमियम होगा और जो लॉस होगा, क्या हम दोनों में एक फिक्स्ड अमाउंट मींस प्रोपोर्शनेटली जो हमारी फर्स्ट कंपनी है और जो सेकंड कंपनी है उसके बीच में लॉस और प्रीमियम हम अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So there is an illustration which says that if a ceding insurer is seeking reinsurance of an insurance contract value of 5 lakh on an annual premium of rupees 10,000, on which the reinsurer agrees to 20% and the actual loss of 1,50,000, सीडिंग कंपनी ने कितने का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चाहती है, 5 लाख का। प्रीमियम कितना पे करना चाहती है, साल भर का 10,000 रुपये। और री इंश्योरर से अग्री क्या है कि 20% और एक्चुअल लॉस 1,50,000। So in this case, the ceding insurer will retain the contract of the value that is 4 lakh rupees, 80% of the total value। जो उसने बोला रीइंश्योरर ने 20% अग्री कर लिया, बाकी कितना बचा 80%, 80% ऑफ द टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी 5 लाख रुपीज। तो कितना रिटेन करेगा हमारा सीडिंग कंपनी के पास, कितना नुकसान रह गया 4 लाख रुपए का। एंड विल सीड 1 लाख रुपीज टू द रीइंश्योरर दैट इज 20%। 20% किसके पास चला गया हमारा, इंश्योरेंस आगे वाली सेकेंड कंपनी के पास चला गया। सो द प्रीमियम a sum of rupees 2,000 will be given to reinsurer। अब प्रीमियम कितना था 10,000 रुपये, उसका 20% 2,000 रुपीज। सो वो रीइंश्योरेंस के पास चला जाएगा आउट ऑफ अ लॉस ऑफ 1,50,000, 3,000, 30,000 will be contributed by the reinsurer। सो 20% हमारा री इंश्योरर दे रहा है। सो री इंश्योरर अगर 20% दे रहा है, नुकसान कितने का हुआ हमें 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख के नुकसान पे 20% हमारा री इंश्योरर देगा जो कि 30,000 रुपीज बनता है। मैं आपको ये दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी फर्स्ट कंपनी के पास एक इंश्योरेंस कवर आया जिसमें कि 5 लाख का वो इंश्योरेंस कवर दे रहा था, उसका प्रीमियम 10,000 रुपये उसने लिया फॉर एग्जाम्पल। उसने सेकेंड कंपनी री इंश्योरर को पास गया कि ये सिचुएशन है, आप कितना एक्सेप्ट करते हो और क्या कैसे एक्सेप्ट करते हो। तो उसने बोला ठीक है मैं 20% की वैल्यू अग्री कर लेता हूँ, ठीक है, और लॉस हमारे पास दे रखा है 1,50,000 का। सो सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें देखना है कि सीडिंग कंपनी के पास कितना रह गया।
20% उसने बोला सेकेंड कंपनी ने कि मैं 20% ले लूंगा। सो 5 लाख का 20% 4 लाख होता है, और 20% हमारा 10,000 का 2,000 होता है। सो ये प्रीमियम हो गया और ये उसका इंश्योरेंस वैल्यू हो गई, टोटल कवर जो हम कहते हैं। फिर अब नुकसान हुआ हमें 1.5 लाख का, जिसमें कि उसने बोला था मैं सिर्फ 20% ही दूंगा। सो 20% देगा, सो 30,000 रुपीज री इंश्योरर्स ने दे दिया। सो अब आप देखिए फायदा क्या हुआ फर्स्ट कंपनी को, उसने 2,000 रुपये दे के प्रीमियम कितना पैसा ले लिया, 30,000 रुपीज। सो ऑटोमेटिकली 2,000 दे के 28,000 का उसको बेनिफिट हो गया फर्स्ट कंपनी को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इससे आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और इससे आपको एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? नहीं, अगर हम C2C की बात कर रहे हैं तो उसमें कंपनी टू कंपनी है, हमने एक कंपनी को दे दिया, उसने आगे सेकंड कंपनी से आगे कांटेक्ट किया, सो वो उन दोनों कंपनीज के बीच में है। हिंदी मीडियम में भी आप दे सकते हैं। ये ऐसा बेसिक न्यूमेरिकल हो सकता है आ जाए। आपने एक कंपनी से इंश्योरेंस लिया ना, से उसी इंश्योरेंस कंपनी ने आगे सेकंड, उसको लगा कि मैं नुकसान पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो उसने आगे सेकंड कंपनी को बोला कि यार भाई मैं नुकसान पूरा नहीं कर सकता, तो उसमें से कितना तू कर सकता है, तो वो उसी ने एक तरीके से आगे फिर से इंश्योरेंस कर दिया। हमने एक ही कंपनी को कांटेक्ट किया, कंपनी ने कंपनी को कांटेक्ट किया। नॉर्मल लॉसेस जो हमारे हम इंश्योरेंस कराते हैं, किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराया, कंपनी ने आगे फिर से री इंश्योरेंस करा दिया किसी और कंपनी से। हिंदी मीडियम आप दे सकते हैं, प्लीज़ दोबारा दोबारा ना लिखिए। हाँ, सो अगर नुकसान होता है, हम ए कंपनी को कांटेक्ट करेंगे जिसको हम जानते हैं, और ए कंपनी बी कंपनी को कांटेक्ट करेगी। मैं आपको ये दोबारा से इलस्ट्रेशन बता देती हूँ। सी इस इलस्ट्रेशन में क्या है, आपने बोला एक कंपनी, मैं कंपनी के पास गई, मैंने 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ, उसको मैंने, उसने मुझे 10,000 रुपये बोला, मैं 10,000 प्रीमियम लूंगा, तो मैंने उसको 10,000 प्रीमियम दे दिया। अब वो दूसरी, अब वो सोचता है कि मेरे पास मैं 5 लाख का पूरा अगर नुकसान हो जाता है मैं नहीं भर पाऊंगा, तो वो आगे किसी और कंपनी के पास जाता है सेम के साथ कि ये ऐसी सिचुएशन है, आई वॉन्ट टू री इंश्योर, मैं इसके दोबारा से री इंश्योरेंस कराना चाहता हूँ, तो कितनी वैल्यू भरेगा और क्या कैसे करेगा। उसने बोला मैं 20% ले सकता हूँ इसका। ठीक है, 20% पे हमारी डील सेटल डाउन हो गई। एक्चुअल लॉस कितने का हो गया, जिसने इंश्योरेंस लिया था उसका एक्चुअल लॉस 1,50,000 का हो गया। अब मैं कंपनी ए के पास जाती हूँ, जी मेरा 1,50,000 का नुकसान हो गया, कंपनी ई कैलकुलेट करती है सारी चीजें, और कंपनी ई कंपनी बी के पास जाएगी कि जी तूने 20% बोला था मुझे देने के लिए, अब तू 20% दे। सो 20% में क्या किया उसने, 40 लाख का, उसको 4 लाख का कवर दिया, जिसमें कि 2,000 रुपये उसने प्रीमियम पे किया था ए कंपनी ने बी कंपनी को। सो अब जब नुकसान हुआ 1.5 लाख का, तो इसका 20% अब बी कंपनी को देना पड़ेगा, जो कि 30,000 रुपीज था। सो इज दिस क्लियर नाउ? सो फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस में फ्लेक्सिबल मेथड है, applicable to those cases where no method works. इंश्योरर कंपनी टू राइट लार्ज अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इंक्रीज कर देता है, इज टेंड टू स्टेबलाइज इंश्योरेंस ऑपरेटिंग, शिफ्टिंग लार्ज लॉसेस टू दी री इंश्योरर। अब आपने देखा उसने 2,000 रुपये दे के
30,000 रुपए का नुकसान बचा लिया अपना, जो 28,000 रुपए उसके बच गए। सो ड्रॉबैक क्या हुआ फैकल्टेटिव का? अनसर्टेनिटी है, क्योंकि प्राइमरी इंश्योरेंस को नहीं पता कि नुकसान होगा या नहीं होगा, हो सकता है नुकसान हो ही ना, 2,000 रुपये उसके बेस चले जाएंगे। सो उसको डेफिनेटली उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। टाइम लगेगा इंश्योरेंस, सेकंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करने में, कोई भी जल्दी से ऐसे री इंश्योरेंस हो सकता है एक्सेप्ट ना करे। सो एडवर्स एक्सपीरियंसेस में क्या होगा, जब मार्केट टाइट हो जाती है, सो सेशन मींस आगे सेकंड री इंश्योरेंस होने का के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटी री इंश्योरेंस। The term treaty refers to the agreement between the two parties specifying conditions and procedures in respect of a business to be transacted within the agreeing party। दोनों पार्टी के बीच में ट्रीटी स्पेसिफिक कंडीशंस और प्रोसीजर पे बिजनेस चलता है। सो ट्रीटी मीन्स अ री इंश्योरेंस अग्रीमेंट बिटवीन the insurer and the reinsurer, usually for 1 year or longer, which stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the reinsurance of some class or classes of business। सो एक से ज़्यादा साल के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, अग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। फर्स्ट प्राइमरी इंश्योरर ने बोला कि वो आगे बिजनेस करेगा री इंश्योरेंस के साथ, और री इंश्योरेंस ने एक्सेप्ट किया। एक तरीके का स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी री इंश्योरेंस में। सो प्राइमरी ऑटोमेटिकली रिसीड्स एंड द reinsurance automatically reinsures stated proportion of risk। All the business that falls within the scope is automatically reinsured according to the terms of treaty। So a reinsurer say Y enters into the agreement with the primary insurer say X। Reinsurer means second company पहली वाली कंपनी के साथ अग्रीमेंट में आ रही है टू 50% ऑफ लॉस टू बी अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल पेरल्स up to extent of 4 lakh rupees। It means any contract of accidental insurance underwritten by X up to limit of 4 lakh rupees would automatically come under the reinsurance agreement। 1 minute please, just give me a minute।
So sorry, there was some technical issue. So let's read the example again. A reinsurer से Y second company agreement में आती है primary insurer से X के पास, Y जा रहा है X के पास, ठीक है, to accept 50% of loss to be occurred due to accidental peril up to the extent of 4 lakh rupees. Means अब accidental insurance underwritten by X to the limit of 4 lakh rupees. अब एक्स कंपनी के पास इंश्योरेंस आया होगा कि 4 लाख का इंश्योरेंस उसने किया, जिसमें कि 50% किसने बोला, वाई ने बोला कि जी मैं ले लेता हूं. बट रिमेंबर एनी इंश्योरेंस एक्सीडिंग अ सम ऑफ रुपीज 4 lakh would not be entitled to be reinsured. So in a case of a loss, full amount would be borne by X only. Similarly, a percentage of risk could also be considered up to which an extent the reinsurance will take place. So 4 लाख से ज्यादा का कोई भी अमाउंट होगा वो इंटाइटल अब री इंश्योर नहीं हो सकता, क्योंकि कितने का मैक्सिमम इंश्योरेंस था, 4 लाख रुपए का. सो इस वाले केस में क्या होगा, जब Y जा रहा है एग्रीमेंट में X के साथ, सो अगर कोई भी नुकसान होता है, सो इन अ केस ऑफ लॉस कौन अमाउंट कौन बेयर करेगा, सारा अमाउंट कौन देगा, X देगा. इस केस में और फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था, हमारा जो उसने बोला 20% देगा, वो इसमें 20% वो नहीं देगा. सो इसका मतलब क्या हो गया, री इंश्योरेंस अग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर and the reinsurer, usually for 1 year or longer, which stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the reinsurance of some class or classes of business. इसका एग्जाम्पल और पहले वाले एग्जाम्पल में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा. पहले में हमारी दोनों कंपनीज, अगर हम आगे जा रहे हैं उसके पास, तो हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने हमारा जो भी हमारा 20% उसने बोला लिया, उसने उसको कंप्लीटली पे ऑफ किया. अब इसमें रीइंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास आई है, प्राइमरी इंश्योरर के पास, एक्स के पास, टू एक्सेप्ट, क्या चीज उसने एक्सेप्ट करी है, 50% ऑफ लॉस ड्यू टू एक्सीडेंटल पेरिल अप टू 4 लाख रुपीज. एक्स ने अंडर राइट किया 4 लाख का अमाउंट. इसमें क्या हमारे पास बेनिफिट्स है इस ट्रीटी का, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी नहीं है, no uncertainties involved, thus no delay in writing contract agreement. This is also economical method because primary insurer has not to wander in search of reinsurer and avoid administrative cost, because second वाला इस केस में y x के पास आया है, फर्स्ट वाले केस में x y के पास जा रहा था. सो इसका डिसएडवांटेज, द रीइंश्योरर, न्यूमेरिकल ऐसे नहीं आएंगे, बट दिस वुड बी अ वेरी बेसिक थिंग. अगर कोई ऐसे न्यूमेरिकल आ जाता है तो, अगर आता है तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आएगा, जो कि हमने अभी किया था. The reinsurance has no or unlimited knowledge about each and every contracts of insurance. It would not be possible that reinsurance bear the burden of poor knowledge, weak professional things. It would be unprofitable for the ceding insurer and the insurer to bear the high cost in the long term period. So ये दोनों बेसिक हमारे हैं कि ट्रीटी और हमने फैकल्टेटिव किया था वो क्या होता है. प्रीमियम कौन पे करेगा, प्रीमियम फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट कंपनी के पास जा रहे हैं, हम फर्स्ट कंपनी को देंगे 10,000 रुपए. अब आगे का 10,000 सेकेंड कंपनी ने बोला 20% मैं दूंगा, तो 20% सेकेंड कंपनी फर्स्ट कंपनी सेकेंड कंपनी को देगी. पर हमने प्रीमियम किसको दिया है, फर्स्ट कंपनी को दिया है सिर्फ. फर्स्ट वाले में फैकल्टेटिव में एक्स जा रहा था वाई के पास,
और सेकंड में y आ रहा है x के पास, बिकॉज उसके पास या तो नॉलेज कम है या फिर उसके पास कोई डेफिनेटली उसने अपना प्रॉफिट करने के लिए कि उसको प्रीमियम मिलेगा तो उसने उस काम को करने के लिए 50% उसका ले लिया। इंश्योरेंस कराते हैं और हमारा एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी डेट ख़त्म होती है, द कंपनी हमें इंश्योरेंस का लॉस देगी क्या? नहीं, डेट अगर ओवर हो गई, अगर आपका इंश्योरेंस कल तक का था और आज एक्सीडेंट होता है तो कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। जिस डेट तक का इंश्योरेंस है उस डेट तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अब इसी का एक और एग्जाम्पल है, हो सकता है आपको जिन लोगों को वो समझ नहीं आया। अ सीडिंग इंश्योरेंस मीन सबसे पहले वाला फर्स्ट इंश्योरेंस, X gets three insurance contracts of fire insurance for which he has already made an arrangement under a treaty with the reinsurance। 3 बना लेता है वो, ठीक है। Y to retain 30%, ceded 70% to Y of any contract lesser than 5 लाख वैल्यू। Y के पास 30% है। The premiums are 5, 7 and 8 respectively. The insurance premiums and losses on these are shown in the current policy. So policy 1, value of policy, ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, लॉस आपको दे रखा है। अब रिटेंशन वैल्यू कितनी है? 30% है। थर्टी परसेंट आपकी रिटेंशन वैल्यू हो गई। रिटेंशन वैल्यू कैसे आएगी? आपका लॉस है, ठीक है। लॉस का 30% वैल्यू एक के पास है और 70% वैल्यू एक के पास है। so, जो फर्स्ट कंपनी थी उसके पास कितनी वैल्यू है? 30%, 70, और सेकेंड वाली के पास है 30%। सो ये 30% आ गई, ये पॉलिसी की वैल्यू है, ये लॉसेस है, ठीक है। 30% जो रिमेनिंग है वो उसमें जा रहा है। अब बाई चांस की बात है, वैल्यू और ये और लॉस 30% है, सो सारा वैल्यू ऑफ रिटेंशन आ जाएगा। 30% में ही सारा कवर हो रहा है, 70% में रिक्वायर्ड ही नहीं है जाने की। सो परसेंटेज वैल्यू ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योरर, परसेंटेज वैल्यू ऑफ लॉस बियर बाय द प्राइमरी इंश्योरर, ये सारा इंश्योरेंस फर्स्ट वाले इंश्योरेंस ने, जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने ये सारा नुकसान बेयर किया। सेकेंड वाली कंपनी क्या बेयर कर रही है? ये वाला नुकसान बेयर कर रही है। कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है, बट इट इज जस्ट सिंपल कि फर्स्ट वाली कंपनी ने कितना लिया और सेकेंड वाली कंपनी ने कितना लिया। अब इसमें आप कोई बोलेगा कि 30% लिखा था, तो उसने फिर ये भी बोला था, उसने 70% दिया कि जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख से कम है। सो अगर आप देखें ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख से कम है। सो जिसमें 5 लाख से कम है उसमें वैल्यू कितनी दे रही थी उसको? सेकेंड वाली कंपनी को 70% वैल्यू दे दी उसने। जैसे ही 5 लाख वैल्यू से ज़्यादा हुआ, सारा अमाउंट हमारा बाई चांस की बात है 30% में हमारा हो रहा है। बेसिक क्लियर हो गया आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? हमने 70% और 30% कहाँ से आया? 30% उसने रेडी हो गया और उसने 70% दिया कि जब 5 लाख वैल्यू से 5 लाख से कम होगा तो तू 70% देगा।
देखो हमने सारे डेफिनेशंस किए थे. दिस टॉपिक इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. ये रहा रिटेंशन. आपने मुझसे किसी ने पूछा रिटेंशन, जो रिस्क रिटेन्ड बाय द ओरिजिनल इंश्योरर, जो ओरिजिनल इंश्योरर ने रिस्क को रिटेन किया था. जो स्टार्टिंग के ऑफिसर ने रिस्क को अपने पास रखा 5 लाख का, जैसे फॉर एग्जांपल, सो वो था रिटेंशन अमाउंट. क्लियर एवरीवन? सो वैल्यू ऑफ रिटेंशन, जो फर्स्ट कंपनी ने अपने पास रखा. अब इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें सारी डिटेल्स दे रखी है. प्रीमियम, एक्चुअल लॉस. सम अश्योर्ड भी दे रखा है, प्रीमियम भी दे रखा है, लॉस भी दे रखा है. ठीक है. क्वेश्चन है, अ सीडिंग इंश्योरर ए एंटर्स इनटू अग्रीमेंट विद इंश्योरर, reinsurer R agrees that the primary insurer will cover a line of risk of 3 lakh rupees and the surplus of that will be borne by the reinsurer up to a maximum limit of 50 lakh rupees. The primary insurance submit the 4 policies. तीन लाख है और ये 50 लाख है. अमाउंट, लॉस, प्रीमियम सब दे रखा है. सीडिंग इंश्योरर इन परसेंटेज 100%. क्यों? क्योंकि हमारा लॉस 3 लाख से कम है. सारा वो लेगा. जहां लॉस हमारा 3 लाख से ज्यादा ये होगा, तीन लाख से कम है, 3 लाख से ज्यादा है, 3 लाख से ज्यादा होगा तो परसेंटेज इज नॉट गिवन. 1 minute please, let me just see. अब आप देखिए 3 लाख तक उसने बोला फर्स्ट कंपनी पे करेगी. 3 लाख फर्स्ट कंपनी ने पे किया, जिसका मतलब वो 50% पे कर रहा है हमारा ओरिजिनल का. 50% ही आ गया हमारा ओरिजिनल का. 3 लाख हमने बोला कि हमारा ये वाली कंपनी पे कर रही है, फर्स्ट वाली. ऑटोमेटिकली बैलेंस कौन पे करेगा? सेकेंड. अब हमें इसमें 3 लाख पे कर रहा है, इसमें भी उसने 3 लाख पे किया है जो कि 12.5% है. ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ये बाकी का रिमेनिंग अमाउंट कंपनी बी पेयर कर रही है. 5,50,000. 3 लाख तो उसने बोला और उसने बोला 50 लाख तक कंपनी बी देगी. ठीक है, बट 50,000 रुपये ऊपर है, ऑटोमेटिकली कंपनी ए के पास 50,000 रुपये का और नुकसान आ जाता है. दिस इज 6% प्लस 50,000 रुपीज. ये एक बेसिक कैलकुलेशन है. अगर आप कैलकुलेटर से प्रॉपर करेंगे सो आपको बहुत इजीली हो जाएगा. इन दोनों का हमने परसेंटेज निकाला और फिर हमने किया है. आप इस दोनों अमाउंट को ऐड करके भी आप परसेंटेज निकाल सकते हैं. ऑटोमेटिकली इसकी परसेंटेजेस आ जाएंगे. बस उसने सिंपल बोला कि मैं 3 लाख तक दूंगा जब हमारा अमाउंट होगा इंश्योरेंस का. ठीक है, 3 लाख के ऊपर जैसे ही होगा बाकी का अमाउंट पे करेगी हमारी सेकंड कंपनी. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2.
ये बेसिक आप एग्जाम्पल आप बाद में देख सकते हैं। These are few examples. I'm not doing each and every examples. आपके पास PDF है. These examples are more or less same. So आप examples करिए. अगर कोई किसी को डाउट होता है, we'll take up that example. We have to do co-insurance. एक बारी दोनों के बीच में definition भी देखेंगे, difference क्या होता है. So let's just complete co-insurance and then we'll take a short break. So co-insurance क्या हो गया? Is a contractual provision that often appears in the property insurance. Co-insurance is a contractual mechanism between several insurers connected with each other, either through contractual obligation or through the business connection, to provide insurance either through contractual to against a high amount of risk which is difficult to cover by a single or an individual insurance. So co-insurance occur where more than one insurer is in the direct contractual relationship between the insurance occurs where more than one insured. So generally the concept of co-insurance prevails in the property insurance, where the amount of insurance covering of large industrial and commercial complexes and insurance express their capacity to cover the risk. In the case that insurance may opt to a strategy either he may find difficult to or different thing. So example है इसका, पहले हम देखते हैं. 5 insurers may arrange to bear 20% of risk. In law, separate contract exists between the insured and the 5 insurers. Through the practice, it may be a leading insurers that may conduct all the business on the behalf of the insurers. और इट मे बी पॉसिबल. सो एक ही उसमें इंश्योरेंस ने 5 लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है. सो जो डिफरेंट इंश्योरर्स होंगे वो एक ही अमाउंट को 5 अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द इंश्योरेंस क्लॉज रीड 90% of a particular type of industry must be considered for insurance, and an industrial complex of value of 5 crore, and the owner has insured only for 4 crore. So in case the requirement to take insurance is for 4.5 crore, 90% बोला है, इसका 90% बस उन्होंने 4 करोड़ का ही लिया है. So thus if loss occurs 50 lakhs, then the amount of loss will be paid up by the maximum extent calculated on the proportionate basis. So the co-insurers will pay only 44.44 lakhs against 5 lakhs. The insured has to retain remaining of 5.56 lakhs. सो अगर हम को इंश्योरर्स अगर वो डिसाइड करते हैं, सो वो कितने पैसे देंगे? वो सिर्फ 44.44 लाख रुपीस ही देंगे. सो को इंश्योरेंस इज अ टेक्निक एंड अ क्लॉज ऑफ इंश्योरेंस contract under which multiple insurers join their hands to protect a risk. मल्टीपल इंश्योरर्स क्या होंगे? एक साथ ज्वाइन करेंगे कि हम रिस्क को प्रोटेक्ट करेंगे. री इंश्योरेंस क्या मेथड है कि इंश्योरर इंश्योर्स हिमसेल्फ. पहली इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी क्योंकि उसको अपना नुकसान कम करना है. कवरेज, it covers all the types of insurance, life, accidental, property. Co-insurance is well known for, इसमें हमने property से related बताया था. Having huge value है property situated at point where two different geographical jurisdiction intersects. दो geographical
इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सो ज्यादा कंपनीज आके एक साथ इंश्योरेंस कर सकती है। मैंडेटरी इन इंडिया री इंश्योरेंस इज अ स्टैट्यूटरी, कंपल्शन नहीं है, इट इज ऑप्शनल mechanism through mutual agreement and a business connection. So ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है। Reinsurance and insured has no direct relationship with each other. मेरा Y कंपनी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। So the co-insurance and the insured are direct, और को इंश्योरर्स में से मैंने 5 इंश्योरेंस कंपनी को एक साथ हायर किया है 20% के लिए, तो उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। Obligations, the reinsurer are not obliged to pay any sum of money to insured in the case of occurrence of a loss. हो सकता है प्राइमरी लॉस ही प्राइमरी कंपनी ही इंश्योरर ही सारा पे कर दे, तो हमें सेकंड कंपनी से कोई मतलब नहीं है। इसमें 20% है, सो प्रोपोर्शनेटली सबको पे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पार्टीज टू हैव मोर देन वन इंश्योरर, इसमें एटलीस्ट 2 को इंश्योरर्स आर देयर। Failure, in the case of failure of primary insurer, the reinsurance cannot be held liable in India. इंडिया में हम सेकेंड वाली कंपनी को नहीं बोल सकते कि जी आप नुकसान भरिए। In the case of incapacity of a singly insurer, would not held the other co-insurer responsible otherwise required in the agreement. अगर इंश्योरर नहीं देता है तो और सारे इंश्योरर्स को पैसे देने पड़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी इक्वल है। पूलिंग रिस्क, इसमें शेयर कर रहे हैं वो रिस्क को, और इसमें वो इक्वालिटी इन रेटिंग है। रेटिंग इक्वालिटी मींस इक्वली काम कर रहे हैं, इक्वली रिस्क को शेयर कर रहे हैं। सो री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप दोबारा से प्राइमरी हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, एवरी ईयर रिन्यू होता है। इररिस्पेक्टिव, आप हो सकता है प्रीमियम कंपनी इंक्रीज कर दे, बट आप दोबारा से करा सकते हैं। सी उस वाले एग्जाम्पल में अगर 5 लाख से कम था अमाउंट, सो मैं उस एग्जाम्पल पे फिर जाती हूँ। वेट, सी 5 लाख से कम था। क्वेश्चन में क्या बोला है? 30% of the risk and 70% to Y in the case of loss which is less than contract which is less than 5 lakh rupees. So 5 लाख से कम है हमारे ये दोनों अमाउंट, सो 30% वैल्यू आ गई। 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो 30% ये देगा, बाकी का रिमेनिंग सेकेंड कंपनी देगी। बट डेफिनेटली फर्स्ट रिटेंशन सारा वैल्यू जो है हमारा इस वाले उसमें लॉस कवर हो रहा है। यार इन पीडीएफ्स में मोर और लेस आपके सिलेबस से ज़्यादा है। सी ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ आपको टॉपिक में दे रखा है को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस, आपके सिलेबस में सिर्फ वही मेंशन है। मैंने सिर्फ डेफिनेटली ये टॉपिक्स आपके सिलेबस से ज़्यादा है। सो आप प्लीज़ अपने 10 ईयर्स चेक कीजिए
10 ईयर्स में अगर आपके ये कैलकुलेशंस आई हैं, बिकॉज ये बीकॉम ऑनर्स की सिलेबस भी सेम है, सो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम में डेफिनेटली बीकॉम ऑनर्स का पेपर थोड़ा सा मुश्किल आता है बीकॉम से। सो आप चेक कीजिए, आपका ये टॉपिक इतने डिटेल में नहीं है जितना डिटेल में हमने किया है। इसमें सिर्फ आपकी बेसिक मेथड क्या होते हैं इसके, आपका क्या डेफिनेशन है, क्या फीचर्स है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में सिर्फ फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स है कि इसका क्या मेथड है। सिर्फ आपका बेसिक जो आपका कैलकुलेशन मेथड है वो मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट आपके सिलेबस में मेंशन है। सो आप चेक कीजिए, आपके सिलेबस में होगा आप तभी कीजिए। फॉर सेफ्टी से मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स बता दिए हैं, बट एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। आई एम टेलिंग यू ना, उसमें इतना डिटेल में आपको मिलेगा ही नहीं। को इंश्योरेंस में क्या होगा, आप इंश्योरेंस कराने गए हैं, आपने आपका इंश्योरेंस आपकी जो जगह है वो 2 जियोग्राफिकल एरियाज के बीच में आ रही है। सो आप क्या करोगे, एक से ज़्यादा लोगों को इंश्योरर्स को हायर आपने किया, क्योंकि आपकी अमाउंट भी वैल्यू भी ज़्यादा थी, आपने हायर किया और उन सब ने इक्वली डिसाइड किया। अगर आपने 2 करे, 3 करे, 4 करे तो उसने डिसाइड किया हम 20-25% अमाउंट हम शेयर करेंगे, जो भी प्रीमियम बनता है उसका आपको 25-25% सबको पे करना है। 20-20% 5 कंपनीज है, 20-20% सारी कंपनीज पे करेंगी। 10,000 का नुकसान होता है, सो उसका 20-20% सारी कंपनीज पे करेंगे। स्टैट्यूटरी मतलब जो मैंडेटरी होता है, परमिटेड होता है, आप उसको कर सकते हैं। अब मुझसे किसी ने फेलियर पूछा है, सो प्राइमरी इंश्योरर अगर पे नहीं करता आपको री इंश्योरेंस में, सो डेफिनेटली आप सेकंड कंपनी को नहीं बोल सकते, बिकॉज आपकी नज़रों में सिर्फ आपने फर्स्ट कंपनी एक्स के साथ इंश्योरेंस किया है। वेयर एज अगर आप को इंश्योरेंस में बात करें, अगर एक कंपनी मना कर देती है कि मैं आपको पैसे नहीं दे रही, तो बाकी कंपनीज से आप पैसे ले सकते हैं। सिर्फ वो उसका शेयर होगा कि वो जो नहीं देगा, बाकी की कंपनीज के जो शेयर होंगे वो आपको मिलेंगे। आप इलस्ट्रेशंस लिखिए, आप एक बारी देखिए, आप अपना 10 ईयर्स चेक कीजिए, बिकॉज आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट एट टाइम्स होता है आपके 10 ईयर्स में कुछ एक आध बेसिक क्वेश्चन आया होगा, तो आप उसको प्लीज करिए। को इंश्योरेंस मैंने आपको बताया, आप एक इंश्योरेंस कंपनी, आपने आपका एरिया जो प्रॉपर्टी का एरिया है वो इतना वास्ट है कि वो 2 ज्योग्राफिकल एरियाज के बीच में आता है, ठीक है। 2 ज्योग्राफिकल मीन्स 2 ज्योग्राफी, मतलब हो सकता है ऐसा कोई है कि यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे आ रहा है, हो सकता है 2 एरियाज के बीच में है और प्रॉपर्टी बहुत ह्यूज है। सो ह्यूज प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है, आप डिफरेंट इंश्योरर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सारे इंश्योरर्स ने बोला कि हम आपकी प्रॉपर्टी ह्यूज है तो हम 20-20% इंश्योरेंस, कोई भी 100% लेने को तैयार नहीं है, बिकॉज प्रॉपर्टी ह्यूज है, प्रॉपर्टी का अमाउंट ज़्यादा है, आप ज़्यादा का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो आपको वही सारी चीज़ें एक साथ वो कर रहे हैं, जिससे कि आपके लिए भी इजी हो जाए, आपका इंश्योरेंस हो जाए और कंपनीज के लिए भी इजी हो जाए कि उनको एक साथ सारा नुकसान ना पे करना पड़े।
आपके सिलेबस में मैं आपको बोल रही हूँ डायरेक्टली मेंशन नहीं है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि आपके सिलेबस में आपको हो सकता है डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, किसी को लग रहा है कि किसी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बट कुछ चीज़ें एक्चुअली में इसमें कंफ्यूजिंग है, बिकॉज ये चीज़ें आपके आपके लेवल से डेफिनेटली आपके क्लासेस से आगे हैं। कुछ जो हमारे इलस्ट्रेशंस हैं, जो टिपिकल इलस्ट्रेशंस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिक हो सकता है आपके सिलेबस में कुछ 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हो, बट आप प्लीज़ चेक कीजिए तब आप करिएगा। बेसिक केस स्टडीज हो सकती है, बट टिपिकल इलस्ट्रेशन आई डोंट थिंक सो आपके सिलेबस में है, बिकॉज ये मेंशन्ड नहीं है। या री इंश्योरेंस में क्या होगा राहुल, आपको नहीं पता, सेकंड कंपनी ने आगे इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। आप कंपनी एक्स को जानते थे, सिर्फ आपके पास कंपनी एक्स का पेपर होगा, आप कंपनी आपके रिलेटिव्स या आपका जो भी जिसकी भी मतलब डेथ हो जाती है, एक्स की डेथ हो जाती है, जो उसके रिलेटिव्स है वाई जेड, सो वाई जेड एक्स कंपनी वन के पास ही जाएंगे, कंपनी टू से उसको कोई मतलब ही नहीं है। कंपनी वन कंपनी टू को कॉन्टैक्ट करेगी कि जी इसकी डेथ हो गई है, आपको इसके पैसे जो भी आपने अग्री किया था वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी दोनों कंपनी से मिलेगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम कंपनी वन के पास ही जाएंगे। को इंश्योरेंस में होगा कि हम पांचों कंपनीज के पास जाएंगे। आप 10 ईयर्स चेक कीजिए, 10 ईयर्स में नहीं है तो आप प्लीज मत करिएगा। सी वी आर लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम, सो हम दोबारा से इलस्ट्रेशंस आप करिए। नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट होगा आप मुझसे इलस्ट्रेशंस पूछ लीजिएगा। 20.3 कौन सा इलस्ट्रेशन है? आप देखिए अपना सिलेबस चेक कीजिए पहले, अगर आपको लगता है सो जस्ट अब नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, हम दोबारा से कर सकते हैं। अनुज, डॉक्ट्रिन ऑफ पूलिंग में क्या होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ आके आपको मैक्सिमम एडवांटेज, जैसे को इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं कि मेनी इंश्योरर्स आर कमिंग टुगेदर, और वो एक साथ आके आपके रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं और आपके एडवांटेज को मैक्सिमम कर रहे हैं। ऐसा जैसी कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज कंपनी दूसरी कंपनी को कांटेक्ट करेगी, हो सकता है उसके पास 50 लाख का इंश्योरेंस हो सकता है 30 लाख का हो। स्टडी मटेरियल सारे चैप्टर्स आपको ऑनलाइन गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है। रिटेंशन वैल्यू जो फर्स्ट कंपनी अपने पास रख लेती है वैल्यू, दैट इज रिटेंशन वैल्यू।
Deepti, why are you writing the same thing over and over again? आपको सारे पीडीएफ्स ऑनलाइन अवेलेबल है गूगल क्लासरूम पे। मैंने आपको गूगल क्लासरूम का लिंक दिया है। नूर, यस देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड की प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन था, तो उसमें वो प्रॉक्सिमेट वो देखते हैं कि किसकी वजह से हुआ है। अगर वैलिड रीज़न है, अगर जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया है और अगर वो वैलिड रीज़न है तो आपको कंपनी पैसे देती है, अगर वैलिड रीज़न नहीं है तो नहीं देगी। एक एग्जांपल था जिसमें था हेल्थ इंश्योरेंस था, सॉरी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। सो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में फर्स्ट केस हुआ जिसमें कि एक्सीडेंट हुआ और फिर हार्ट अटैक हुआ, सो उस केस में आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। सेकेंड केस है जिसमें कि पहले हार्ट अटैक हुआ और फिर उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, सो उस केस में आपको हेल्थ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज एक्सीडेंट इंश्योरेंस किसकी वजह से हुआ? आपकी हेल्थ खराब होने की वजह से हुआ। अगर आपकी हेल्थ खराब हुई उस वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ। So there is a difference between both of the examples. बुक्स आई डोंट थिंक सो रिक्वायर्ड है, बट आपको लगता है आप बुक तभी खरीदेगा। इज इट क्लियर नूर इज इट क्लियर? री इंश्योरेंस के इलस्ट्रेशंस है, बेसिक इलस्ट्रेशंस हैं, सो आई थिंक सो वो इजीली मैनेजेबल है। इंस्टेड आपको नहीं लगता, अगर फिर भी आपको लगता है कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, आप उसको डालिए, हम देखते हैं। बट बेसिक इलस्ट्रेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं दोनों के। नूर इज इट क्लियर? श्योर। सारा मोर और लेस एवरी पार्ट इज कवर्ड। स्टिल आपको अगर कोई लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज। विल टेक अ 5-7 मिनट्स ब्रेक।
So yes, we'll start with the topic. We are starting with the new topic, regulatory framework of insurance. Completely theory topic. So इसमें हमारे पास IRDA एक्ट है 1999. ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कॉम्पोजिशन है, ड्यूटीज, पावर्स और फंक्शंस है. सो सबसे पहले हमें अभी तक हमने देखा, अभी तक इंश्योरेंस में हमने जितना भी पढ़ा कि एक लेजिस्लेटिव एक मैकेनिज्म होता है जो रेगुलेट कर रहा है हमारे इंश्योरेंस बिजनेस को. सो इंश्योरेंस में हम बात करते हैं कि कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसका हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं. कुछ ऐसी भी हो सकती है कंपनीज जो कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो जिनका है वो डिफ्रॉड करने का है. एक ना गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली इस सारे एक्ट को, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, जो कि IRDA एक्ट था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपके इंटरेस्ट को होल्डर्स जो आप इंटरेस्ट जो इंश्योरेंस करा रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको रेगुलेट करे, प्रमोट करे, इंश्योर करे कि अगर ग्रोथ हो रही है तो ऑर्डरली वे में ग्रोथ हो रही है. ऐसा नहीं है कि कंपनीज डिफ्रॉड कर रही है, कंपनीज फ्रॉड कर रही है, कंपनीज पॉलिसीज को नहीं फॉलो कर रही है. उन्होंने अथॉरिटी बनाई IRDA 1999 मीन्स दिस एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1999. This authority incorporated under act is Insurance Regulatory and Development Authority IRDA. एक कॉर्पोरेट एक तरीके की एंटिटी है जिसका रोल क्या है, सेबी का जैसे हमने देखा है बैंकिंग में सेबी का रोल होता है, वैसे ही इंश्योरेंस में IRD का रोल होता है. सेबी का रोल है स्टॉक एक्सचेंजेस को सारे को मेंटेन करना. IRDA का क्या रोल है, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज जो है सारी उसको रेगुलेट करना, उसको फॉर्मुलेट करना कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं, हमारी एक्ट किस किस चीज़ के लिए है, हम इंश्योरेंस को कैसे कवर अप करें. द पेरेंट एक्ट जो सबसे पहला एक्ट था वो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज एक्ट था जो 1938 में हुआ था. उसको अमेंड करके काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हुए, उसको फाइनली अमेंड करके 1999 में हमारा IRDA फॉर्मुलेट हुआ. उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने बेसिकली अभी पढ़े कि बेसिकली एम ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बट स्टिल उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, फ्री ट्रीटमेंट सबको, पॉलिसी होल्डर्स को, सबके लिए. आपके लिए भी पॉलिसी वही है, अगर आप लेते हैं मेरे लिए भी पॉलिसी वही है. उसके ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना, मॉनिटर करना, प्रमोट करना कि जिससे कि फाइनेंशियल साउंडनेस रहे, फेयर डीलिंग रहे. इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ भी फेयर है और मेरे साथ भी फेयर है. अगर किसी को इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है कवर की, उसको प्रॉपरली दे. ऐसा नहीं है कि उसको प्रीमियम को कर्व किया उन्होंने कि कुछ कंपनीज क्या करती थी, बहुत ज़्यादा हाई प्रीमियम चार्ज करती थी. वो फ्रॉड ना हो कि सिर्फ प्रीमियम ले या फिर वो आगे इंश्योरेंस कवर ना दे. उन कंपनीज को वो प्रमोट नहीं करती थी, उनको वो लाइसेंसेस नहीं देती थी. सबसे पहले बेसिक रूल क्या था कि प्रॉपर फाइनेंसेस हो, प्रॉपर उस चीज़ को रेगुलेट किया जाए जिससे कि फेयरनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे बिजनेस में. सेल्फ रेगुलेशन की अगर हम बात करें, इसमें सेल्फ रेगुलेशन था जिसमें डे टू डे इंडस्ट्रीज के साथ कंसिस्टेंट रहना था. हो सकता है आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज आपको डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, सबकी प्रीमियम अलग है, सबके रिक्वायरमेंट्स अलग है. सब चीज़ों को सेल्फ फेयर मतलब कि आपके लिए फेयर रखने के लिए सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल कराई गई कि आप हर किसी पॉलिसी इसको कंपेयर कर सके, देख सके. ये सारी चीज़ें किस लिए ऑनलाइन अगर क्यों कराया गया, जिससे कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अब हमारे कॉम्पोजिशन की बात करिए, इसमें IRDA में कुछ होल टाइम मेंबर्स हैं, चेयरमैन है और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स हैं. चेयरमैन के पास क्या पावर है, जनरल सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. चेयरमैन कौन हो गया, एक तरीके का हेड हो गया. उसके पास सारी पावर्स हैं. चेयरमैन और होल टाइम मेंबर्स इज ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट विच दे एंटर्ड इनटू द ऑफिस. 5 years का उनका टर्म रहता है
और रीअपॉइंटमेंट भी वो हो सकती है उन लोगों की। लिमिट क्या है? कंप्लीशन 65 ईयर्स की एज होनी चाहिए मैक्सिमम। और जो होल टाइम अगर हम डायरेक्ट मेंबर्स की बात कर रहे हैं उनकी 62 ईयर्स होनी चाहिए। नो टाइम, इट मीन्स नो होल टाइम मेंबर्स और चेयरमैन कैन होल्ड द ऑफिस of the age of 62 और 65 respectively। चेयरमैन 65 और होल टाइम डायरेक्टर 62, इससे ज्यादा ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकते। पार्ट टाइम का भी 5 ईयर का टर्म होता है जिसमें कि वो आगे दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं। इसमें एज की स्पेसिफिकेशन नहीं दी गई है जो कि पार्ट टाइम है। सेंट्रल गवर्नमेंट है कि वो चेयरमैन को या फिर किसी भी मेंबर को हटा सकती है नोटिस देके 3 महीने के अंदर। अब हम रिमूवल की बात करते हैं। अब सारी पावर किसके पास है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मेंबर और चेयरमैन को हटा सकती है कि उसका ऑफिस का कंप्लीशन पहले नहीं हुआ है, स्टिल उसके पहले भी वो उसको हटा सकती है किसी भी टाइम जब भी वो चाहे। सो अब किस किस सिचुएशन में इंसॉल्वेंट हो गया उसका टेन्योर, मींस दैट पर्सन इज इंसॉल्वेंट, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल है, कॉन्विक्टेड है, मींस किसी कोर्ट केस में, किसी कोर्ट में या किसी गलत काम में वो फंस चुका है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसने फ्रॉड, गलत काम में फ्रॉड किया है, अब्यूज्ड, उसने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो सारे उस सिचुएशन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है आपकी पोजीशन से। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूटीज, पावर और फंक्शंस आती हैं कि आईआरडी के पास क्या ड्यूटीज है, क्या फंक्शंस हैं और क्या पावर है। सबसे पहले हम पावर की बात करते हैं। पावर, उसके पास क्या पावर है? अब हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की। सो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट देगी वो इंश्योरर को। एप्लीकेंट उसके लिए कौन हो जाएगा? इंश्योरर हो गया या इंश्योरेंस कंपनी हो गई। उसको वो प्रॉपर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, उसकी रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, सस्पेंशन भी कर सकते हैं। सारा काम किसका है? हमारा आईआरडी का है। उसके पास क्या ऑब्जेक्टिव है? उसको हमारी इंटरेस्ट, सारी पॉलिसी होल्डर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सो उसको नॉमिनेशन है, देखना है कितना इंटरेस्ट हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, सरेंडर वैल्यू क्या होगी, कंडीशंस क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट की, सारी चीजें वो हर एक कंपनी के साथ डिस्कस करके तभी उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट इसमें वो प्रोवाइड करता है हमारी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे उसके लिए हमें प्रॉपर क्वालिफाइड एम्प्लॉइज चाहिए। क्वालिफाइड एम्प्लॉइज चाहिए जो इंटीग्रिटी और हमारी सोसाइटी के लिए प्रॉपर काम कर सके, जो डायरेक्टली डील करे और कुछ इनडायरेक्टली डील करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। सो क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है जिससे हमारा कोड ऑफ कंडक्ट और पता चलता है कि हमारे कस्टमर्स के साथ आपको कैसे डील करना है। अब कुछ जो कस्टमर्स होते हैं जो जिनके लीगल एयर्स आते हैं कि उनका ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सो उसके लिए प्रॉपर कंडक्ट मेंटेन किया जाता है कि किसी को भी, किसी भी कस्टमर को, पॉलिसी होल्डर को कोई नुकसान ना हो, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी को भी किसी पॉलिसी होल्डर के साथ कोई गलत काम ना कर रही हो। सो अब इसको मेंटेन करने के लिए आईआरडीए ने क्या किया? उसको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस जो बिजनेसेस है उसके साथ रेगुलेट किया है, जिसमें कि इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस जो हमने बोला, जो कंपनी दूसरी कंपनी से C2C की बात कर रहे हैं उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया है। आईआरडी ने फीस भी लेवी की है, चार्जेस भी लेवी किए हैं इन सारे कामों। अब सर्टिफिकेट देगा और कोई काम करेगा तो आईआरडीए पैसे लेगा उस चीज के। डेफिनेटली कोई ऑर्गेनाइजेशन तभी वर्क करेगी जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन आगे वाले इंश्योरेंस कंपनी से या री इंश्योरेंस कंपनी से चार्जेस लेगी। अब हमने बोला कि ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। सो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेगी तो ये इंफॉर्मेशन हमें देगी, इंक्वायरीज होगी, इन्वेस्टिगेशंस होगी, ऑडिट हो गया, इन सारे को बहुत रेगुलर रखती है इंश्योरेंस बिजनेसेस में। बहुत कंपलसरी मैंडेटरी होता है कि इंटरमीडियरीज जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनको इंश्योरेंस कंपनी के लिए ऑडिट रखती है। सो ऑडिट अगर किसी भी फर्म का होता है सो उसमें मेक श्योर द ऑडिटर्स मेक श्योर कि कोई गलत काम ना हो रहा हो किसी भी फर्म में।
नेक्स्ट इस ये कहता है कि हमारा IRDA रेगुलेट करता है रेट्स। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि रेट्स, एडवांटेजेस, टर्म्स, क्या चीज़ टर्म होनी चाहिए, क्या रेट्स होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, सारा कौन रेगुलेट करता है? सारी जनरल इंश्योरेंस में सब एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, सब चीज़ें रेगुलेटेड होती है। कंपनी अपनी तरफ से ऐसा आउट ऑफ द ब्लू आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी। अगर कुछ बहुत रैंडम अगर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, सो देयर मस्ट बी सम इश्यूज, कोई ना कोई गलत काम कंपनी हो सकता है कर रही हो। अब हमारी फंड्स की हम रेगुलेशन बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं कि कुछ कंपनीज पैसे लेके आगे इन्वेस्ट कर देती है। हमने सोचा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया किसी और, सो इन सारी चीज़ों को भी वो रेगुलेट करती है कि कितना अमाउंट वो आगे प्रॉपरली फंड्स को रेगुलेट कैसे कर रही है, कैसे वो आगे कस्टमर्स को डील कर रही है। ऐसा तो नहीं सारे पैसे लेके उसने कस्टमर्स के पैसे को लगा दिया और वो डेफिनेटली स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर उसने लगाया तो उसका नुकसान हो गया और कंपनी भाग गई। सो इन सारी चीज़ों को भी उसका नुकसान देखना है, इन सारी चीज़ों को भी देखना है। सो उसकी सॉल्वेंसी कंडीशन को भी कौन मेंटेन करता है, कौन किसके चेक रहता है? IRDA उसको भी चेक रखना चाहता है। IRDA एक तरीके की एक मेन इंपॉर्टेंट एपेक्स बॉडी होगी, प्राइमरी बॉडी होगी जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी को डील कर रही है। सो जो इंश्योरर हो गए, इंटरमीडियरीज हो गई और री इंश्योरेंस हो गए, इन सारे के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो IRDA के पास भी इसके रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं जिस पे वो काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरवाइजरी और फंक्शनिंग, जो हमारा टैरिफ कमेटी है वो भी मॉनिटर करती है। टैरिफ का मतलब कि कितना प्रीमियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना इंक्रीज होना चाहिए, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, एज इंक्रीज हो रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज होना चाहिए, क्या चीज़ इंक्रीज होनी चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन्ड एंड मॉनिटर्ड। अब वो परसेंटेजेस भी देखती है कि लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस है सोशल सेक्टर्स में और रूरल सेक्टर्स में, उसको भी प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है। अब कुछ इंश्योरेंस कंपनी को सोशल स्ट्रक्चर के लिए या सोशल वर्क के लिए या फिर रूरल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके लिए भी प्रमोट किया जाता है, जिसमें वहाँ पे भी लोग हमारे अब एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। अब वहाँ पे रूरल एरिया में ऐसा कुछ इंश्योरेंस का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, बट जब डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है सो वो प्रमोट करते हैं एग्रीकल्चरर्स को। हमने देखा होगा एग्रीकल्चरर्स जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, कि आप अपने क्रॉप्स को इंश्योरेंस कराइए, वो इंश्योरेंस कराएंगे तो वो चीज़ आगे प्रमोट हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट IRDA। नेक्स्ट वी हैव बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक। हम इंश्योरेंस, अब हमने देखा होगा कि अब फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है, एक होता है डायरेक्टली आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला, ठीक है, एक आदित्य बिरला की कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। एक है कि आदित्य बिरला किसी बैंक को हायर करता है, किसी बैंक के थ्रू आपको पॉलिसी सेल कर रहा है, सो दैट इज बैंक अश्योरेंस। सो बैंक एंड इंश्योरेंस companies come together in form of a partnership where the bank sells the tied insurance company's product to its client। अब HDFC है, HDFC के लाइफ इंश्योरेंस, HDFC का बैंक भी है और HDFC के इंश्योरेंसेस भी आते हैं। सो HDFC ने एक अपनी अलग सेगमेंट बैंक में खोला जिसमें कि वो अपनी खुद की पॉलिसीज भी बेच रहा है। सो बैंक सेंस इज अ अरेंजमेंट ऑफ बैंकिंग and insurance industry to derive the benefits of each other and core competencies। आगे उसी का स्ट्रक्चर आगे बढ़ा दिया गया है। So as the banking structure has evolved, the insurance policy as per the requirement of the target of the customer as per the income level, सब चीजें देखते हुए उनको पॉलिसी सजेस्ट की जाती है। सो इस अरेंजमेंट को, जो बैंक अश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट को हम बैंक इंश्योरेंस मॉडल बोलते हैं जिसका नाम है BIM ऑल फाइनेंस। दिस इज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, जो कि मर्ज कर रही है दो ऑर्गेनाइजेशन को, एक बैंक को और एक
हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को। सो इससे वो स्ट्रेंथ भी हो रहा है और उसकी अपॉर्चुनिटीज भी। अब बैंक में कंपनी जाती है, कोई कस्टमर जाता है अगर अपने बैंक के पर्पज से, तो वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये हमारे इंश्योरेंस सेक्टर भी है और ये इंश्योरेंस पॉलिसीज है। सो डेफिनेटली वो दोनों चीज़ों को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब इसके की फीचर्स क्या है? सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक ब्रांचेस is a comprehensive solution to industry structure. easy availability, कस्टमर के लिए बहुत easy availability होगा. front office application for staff and back office application for insurance में बी यूज। स्टार्टिंग के जो हमारे फ्रंट ऑफिस होते हैं वो बैंक के साथ, उनको अगर हम इंश्योरेंस की ट्रेनिंग भी दें तो वो डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगा। अब हर तरीके के ग्रुप ऑफ कस्टमर्स आते हैं, हाई इनकम भी आते हैं, लो इनकम भी आते हैं। सो डेफिनेटली अगर हमें पता होगा कि लो इनकम कस्टमर है, हम उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको एक प्रॉपर वो सजेस्ट कर सकते हैं। सो फुल रिटेंशन रिटेल प्रोडक्ट administration including proposals, quotations, policies can be provided by बैंक ही खुद ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है। प्रीमियम की कैलकुलेशन क्या होगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, बैंक की कमीशन क्या होगी, सारी चीज़ें बैंक आपको हेल्प करेगा कि जिससे आपको डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जाना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू गो टू द बैंक एंड देन आप ऑटोमेटिकली अपना बैंक में सारे काम कर सकती है। सारे ऑप्शन है आपके पास, आप बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपकी कमीशंस होंगी, वट एवर स्टेटस आपका जो होगा वो आपके इलेक्ट्रॉनिकली बैंक से लिंक कर दिया जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इट इनकरेजेस कस्टमर्स of the bank to purchase insurance policy, further helps in building a better relationship, हमारे बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। अब जो लोग अनअवेयर है हमारी या फिर रीच में नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उनके लिए बैंकिंग नेटवर्क और बेटर नेटवर्किंग चैनल्स ऑफ बैंक से हम हेल्प कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी के पास आए। अब डेफिनेटली हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, सो हमें ओन भी करना है। सो वी वांट मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स टू टेक इंश्योरेंस बिकॉज there are still n number of customers who doesn't even apply, who just apply and they don't require the insurance. So definitely सारा जो प्रीमियम होता है वो कंपनीज के लिए एक तरीके का फायदा प्रॉफिट होता है। इंश्योरेंस कंपनी कैन टैप ह्यूज कस्टमर्स ऑफ बैंक, बैंक में हर तरीके का कस्टमर आएगा और सारे कस्टमर्स आते हैं मेजॉरिटी। नाउअडेज थोड़ा सा ऑनलाइन कस्टमर मूव कर गया है, सो अगर आप देखेंगे सो ऑनलाइन अगर आप बैंक अकाउंट में अपने अकाउंट उसमें जाते हैं सो आपको वहाँ पे भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप पॉलिसीज देख सकते हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि उसका बेनिफिट डीमेरिट्स क्या है। So data management of individual customer identity contact details may result in insurance company utilizing the details to the market their product. डेटा सिक्योरिटी कस्टमर्स की, जो हमारे बैंक कस्टमर्स होते हैं उसकी डेटा सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है। सो उस चीज़ को लेके कस्टमर्स कंप्लेन भी कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बैंक के प्रोडक्ट में और इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोडक्ट में। हो सकता है बैंक विलिंग हो अपने कोई और प्रोडक्ट सेल करने में, बट इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि नहीं आप हमारा प्रोडक्ट के लिए, तो फिर कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें और उसमें कंफ्यूज होके दे कैन टेक अ रॉन्ग डिसीजन, या फिर वो मना भी कर सकता है कि जी हमें किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट नहीं करना। Better approach and services are provided by the bank to the customer is a hope rather than a fact. This is because banks in India is known for their bad customer experiences. So अब हम बैंक जाते हैं, हमारा हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अब बैंक में अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमें सेल करनी है, हमें बहुत कामली पेशेंटली कस्टमर को एक्सप्लेन करना है कि ये आपको फ़ायदा है। और बैंक में एट टाइम्स एजेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत पेशेंटली और एक प्रॉपर एटीट्यूड के साथ आपको एक्सप्लेन करें। सो डेफिनेटली अगर वो चीज़ वो नहीं करते हैं तो यू डोंट एंड अप बाइंग सच स्टफ फ्रॉम द बैंक। ये इसके एग्जाम्पल्स है SBI लाइफ इंश्योरेंस, LIC is tied up with Vijaya Bank, Oriental Bank, Cooperation Bank, ICICI Lombard, Barclays, MetLife India, Axis, MetLife India.
So that's it for this chapter. Any doubts किसी को दोनों टॉपिक्स में से? हाँ, सो यार अगर हेल्थ इंश्योरेंस है उसके पास, ठीक है, और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसने लिया है। एक्सीडेंट होता है पहले, वो एडमिट होता है, उसको हार्ट अटैक आता है, उसकी डेथ हो जाती है। सो इस केस में दोनों उसको मिलेंगे, उसको एक्सीडेंटल भी मिलेगा, उसको हेल्थ भी मिलेगा, ठीक है। सेकंड केस क्या हुआ जिसमें कि उसको हार्ट अटैक आया, उसका एक्सीडेंट हुआ, सो इस केस में सिर्फ हेल्थ मिलेगा, उसको एक्सीडेंटल नहीं मिलेगा। कनुप्रिया सी, एज आई हैव टोल्ड यू ना, बहुत छोटा पार्ट है आपके सिलेबस में री इंश्योरेंस का, ये हमने एक्सटेंड करके किया है क्योंकि सिर्फ एक वर्ड दे रखा है री इंश्योरेंस। सो री इंश्योरेंस दे रखा है तो आप इसमें ये वाला चैप्टर आप देखिए, इसके इलस्ट्रेशंस देखिए, आप अपनी बुक देखिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, और आप मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी बिकॉज दिस पार्ट वाज मोर देन योर लेवल एंड मोर देन इनफ फॉर योर सिलेबस। ओवर एक्स्ट्रा सिलेबस, एक्स्ट्रा पार्ट था ये आपके सिलेबस के लिए। आई थिंक सो यू कैन राइट इन हिंदी, बट स्टिल आप एक बार अपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से पूछेगा प्लीज। फुल सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम पे, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं, एवरीथिंग इज मेंशन। आईडीआर के बेसिक फंक्शंस अनुज मैंने आपको दोबारा से बता दिए हैं कि वो सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जैसे हमारा सेबी का काम होता है कि वो सारे बैंक्स को मॉनिटर करता है, वैसे ही आईआरडीए का बेसिक काम है कि वो प्रोटेक्ट करे हमारे, हम पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज को फॉर्मुलेट करेगा, रेगुलेट करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, जिससे कि हमारे पॉलिसी होल्डर्स जो हैं हम उसको प्रॉपरली वो रेगुलेट कर पाए, उसको प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। Any other doubt, please? No, thank you so much, everyone. I'll see you in the next class now. Thank you so much. SUL ऑफिस में जाके आप एक बार ही पूछ लीजिए। नोट्स ऑलरेडी पीडीएफ गूगल क्लासरूम में आपके पास अवेलेबल है। पीडीएफ सारे आपके पास गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है। एवरी पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन गूगल क्लासरूम, आप चेक कीजिए, आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। I really can't say about the 10 years thing. आप बुक का सिलेबस प्रॉपरली मेंशन कीजिए, आप 10 ईयर्स सिर्फ क्वेश्चंस को कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको रेफर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
जो सिलेबस आपका ऑनलाइन मेंशन है वही सिलेबस आप एसएसएल की साइट पे जाके चेक करेंगे तो सिलेबस सेम मेंशन्ड है। Everything is mentioned in the PDF, so don't worry. Yes, और कुछ? राहुल हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, आप उसका फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। It's Insurance Regulatory Development Authority Act 1999। आप एक बार ही सर से पूछिए एसएल ऑफिस में जाके, बट मेरे अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, बट स्टिल एक बार ही आप कंफर्म कर लीजिए बिफोर राइटिंग इन हिंदी। Thank you so much everyone. I will see you in the next class now. Thank you.